Okay, सबको अपना अपना बडी मिल गया क्या? Yes, ma'am. Okay, so Yesterday we have- Rahul yes. has Ranjit, right? Yes, ma'am. Okay. Deepak, who's your buddy? Prakhar, did you manage to get your buddy? Yes, ma'am. I can be with Deepak sir. With? We had Deepak sir. Okay. Have you we had connected? Have you connected with him? No, we plan to connect today Okay. at 8:30. Okay, fine, fine. What about you, Meenu? Meenu, who's your buddy? Okay, so I had requested yesterday also, so I'm going to request. Going forwards, I want everybody to keep their videos on. So Meenu, Rahul, Prakhar, Deepak, please switch on your videos. I really want to feel your presence here because sirf naam dikhte hai na, to I don't feel the presence of a person. That physical presence, you know, that it gives you an instant connect with the person. Do you agree with me or not? Yes. Yeah. Good morning, Rajiv ji, कैसे हैं? Mic muted. हाँ, राजीव जी आप म्यूट पे हैं. Unmute yourself and speak. Good morning, ma'am. Good morning. कैसे? Sorry for not available for so many days. I really miss the magic and miracle. Yeah. So what is your commitment now? My commitment is that I'll be attending sessions on every day. Wherever I'll be, I will be available for sessions because I want a drastic change in my life because, as you know, I'm a man with some disabilities, but I don't want to feel that. So I want some magical and miracles in my life, and that's possible because of people like you. Faith is the power. That is one, and the other thing is like practice. When you Correct. stay in the same environment and you continue, you know, consistent efforts make difference. अगर आप consistently इसको practice करते रहेंगे एक दिन के बाद every day तो उसका momentum बना रहेगा और उसका जो power है वो बढ़ती जाएगी. बीच में अगर हम उसको ब्रेक दे देते हैं ना, अगर आपने ये बुक शुरू से पढ़ी हो तो इस बुक में लिखा है कि अगर आपका एक दिन भी मिस होता है तो आप 3 दिन पीछे जाइए. Yeah. ताकि आप दोबारा से उस मोमेंटम को बिल्डअप कर पाए. सो दैट इज द होल पर्पस. सो स्टेइंग इन स्ट्रक्चर रियली हेल्प्स and that is why we had started these sessions so that we create a structure for ourselves. Even I need a structure. अगर मैं नहीं हूँ स्ट्रक्चर में रहती हूँ तो मैं भी बीच बीच में प्रैक्टिसेस भूल जाती हूँ. तो उसको कंसिस्टेंटली करने के लिए वो एक कमिटमेंट लेवल चाहिए होता है. So I really acknowledge you for you know giving that kind of a commitment to your own self for transforming your life. तो अभी आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा तो हमने कल से एक नई गेम शुरू की है जिसमें कि हमने बडीज बनाए हैं. बोला है कि एक एक बडी आप अपने ग्रुप में से बनाएं. What exactly is this, ma'am? Okay, so आपने कल का सेशन नहीं सुना इसका मतलब? Actually, for a week's time, for more than 10 days, I was so much, it was so hectic schedule that I cannot explain. It was really hectic. Okay, so what do you think will not make it hectic for going forward?
ऐसा क्या कर सकते हैं आप कि वो हेक्टिक होने के बावजूद भी आप अपने सेशंस ना मिस करें? Ma'am, what I'll do is I'll get up early in the morning and start everything. And a well begin is half done. Yeah, that's true. So, Okay. so, and next thing is that that I'll miss if as you said me that day that what do you want in your life? You Yeah, just want to read this book or you want some more changes in your life. So I won't miss if my life is at 50%. I want to take it to 99, 100%. So yeah, for doing that, if we want some different results in our life, we have to work differently. true. Definitely. So I'm committed now with God's grace and blessings and company of people like you. I'll be doing it. ओके, तो हमने बड़ी स्ट्रक्चर जो बनाया था उसमें ये है, अगर आपने कभी आर्मी के किसी लोगों से बात करी हो या डिफेंस के किसी से बात करी हो, तो डिफेंस में और आर्मी में एक बडीज होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो बडी है ना, वो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है। आपका दुख सुख सब उसका है। आपको जिताना उसका काम होता है। आपने जो भी कमिटमेंट ली है या आपने जो भी अपने लिए ड्रीम्स लिखे हैं, उसको फुलफिल करना उस बडी का काम होता है कि आप अपने रास्ते से इधर उधर ना हो, है ना? तो मतलब वहां तक होता है, मतलब आर्मी में तो ये भी होता है कि अगर आप अपने बडी के साथ जाओगे, अगर फ्रंट में भी जा रहे हो, तो अगर आपका जो बडी है उसको कुछ चोट लग जाती है, गोली लग जाती है या कुछ भी है, या अगर भगवान ना करे उसको कुछ हो भी जाता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको वापस लेके आओगे। तो उसकी जिंदगी आपके हाथ में होती है एक तरह से। तो हमने बडीज बनाए हैं इस सेशन में, ताकि आप 2 जने मिलके जब काम करते हैं तो उसमें कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है। तो आपका जो बडी होगा उसको जिताना आपका काम है। अगर आप अपना काम कर रहे हो तो वो इनफ नहीं है। आपने अपने बडी को जिताना है, और आपके बडी की जिम्मेवारी ये है कि उसने आपको जिताना है। तो वो आपके साथ रूथलेस भी हो सकता है, वो आपके साथ डिफिकल्ट भी हो सकता है। क्यों? उसके इंटेंशन क्या है? आपको विन कराना। तो इसलिए हमने ये बडी स्ट्रक्चर बनाया है, और कल ही ये शुरू किया है गेम। तो कुछ कुछ लोगों के बडीज बन गए हैं, कुछ के आज 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 तक सब लोग बना लीजिएगा प्लीज, बिकॉज अदरवाइज वी विल बी लूजिंग आउट ऑन टाइम। या तो आप भी अपने लिए एक बडी, जो भी रह गए हैं जिनके बडीज नहीं बने, उनमें से बडी बना लीजिए, ताकि आप दोनों इकट्ठे ये जर्नी कंप्लीट करें और एक दूसरे के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बने, और एक दूसरे को होल्ड टू अकाउंट करें। जहां पर भी कोई अगर काम नहीं कर रहा है तो दूसरा उसको बोलेगा कैसे नहीं करेगा, तो तुझे करना पड़ेगा अगर तुझे अपने सपने चाहिए तो। That's true. उस तरह की अकाउंटेबिलिटी, उस तरह की कमिटमेंट चाहिए। तो उसके लिए बडीज बनाए हैं, ताकि मैं चाहती हूँ, मेरा और पूरन का, हम दोनों का इंटेंशन यही है कि जितने लोग भी इस जर्नी में हमारे साथ हैं उनको मैक्सिमम वैल्यू मिले, और वो जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं उसके जितने ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं ड्यूरिंग दिस सेशन वो पहुंचे। तो इन दैट डायरेक्शन वी हैव टेकन दिस स्टेप। एक तो हमने MIS शुरू किया था इस महीने, कि सब लोग शाम को 10 बजे से पहले अपना फॉर्म भरे, ताकि उन्होंने वो कराए या नहीं कराए, वो कर रहा था। दूसरा अभी हमने ये बड़ी स्ट्रक्चर शुरू किया है। सो वी रियली वांट दैट आप सबको बहुत सारी वैल्यू मिले इस सेशन से। सो दिस इज व्हाट द बड़ी स्ट्रक्चर इज। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। Yeah. Okay. And I will choose one of my mentors as my buddy. आपको इसी ग्रुप में से लेना पड़ेगा किसी को। Yeah, he's Mr. Sushil Sharma. ओके, सो यू कैन स्पीक टू हिम। और एक एक के पास 2 से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकते, बिकॉज फिर आपको भी उतना टाइम चाहिए होगा ना। Okay, okay. तो सिर्फ एक इंसान के पास मैक्सिमम 2 बडीज हो सकते हैं। तो आप देख Okay. लीजिएगा सुशील के पास कोई है या नहीं है, आप बात कर लीजिए उनसे। And एंड some more people in my group, means wherever I am giving my classes and sessions, they Yeah. also want to join this kind of sessions in morning. yeah, So- sure, you can ask them to join. Okay, thanks, ma'am.
या बिकॉज अभी देखें आप, हमारे कल 2 लोगों ने ज्वाइन किया है। कल प्रखर ने परसों ज्वाइन किया है, दीपशिखा ने कल ज्वाइन किया है। सो दे जस्ट हैव टू पे द कमिटमेंट फी। ये जो हमने फीस रखी हुई है सिर्फ कमिटमेंट फी है। आई एम नॉट डूइंग दिस सेशन टू अर्न एनी मनी और एनीथिंग। दिस इज जस्ट अ कमिटमेंट, क्योंकि जब कुछ स्टेक पे होता है तो इंसान थोड़ा सीरियस होता है। तो दैट इज जस्ट अ कमिटमेंट फी। दे कैन जस्ट पे द कमिटमेंट फी एंड देन कैन ज्वाइन। That's true. आइडियली शुरू में ज्वाइन करें तो बेटर होता है, बट हर सेशन अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है, तो उनको फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, इसलिए दे कैन ज्वाइन एनी टाइम। राइट? ठीक है True, राजीव? ma'am. Thanks, ma'am. Thanks for sparing your valuable advice. It will be really helpful for me Yeah, in the rest thank of my. Thank you. yeah, you're welcome. And may I request everybody to please switch on your videos. मैं भी आपके सुंदर सुंदर चेहरे देखूं सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग रंजन जी। गुड मॉर्निंग अंजी। Good Morning. morning, ji. On walk. So I'll have to switch off. Oh, great. नहीं, आप Bhargav, अपने आप म्यूट पे रह के आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। okay. Yeah. Anjali, please switch on your video. I know you also on walk. Yeah. Good morning, everybody. Okay, मैं ये पूछ रही थी, सबके बडीज बन गए हैं कि नहीं? किसके रह गए हैं? किसको अभी तक बडी नहीं मिला है? मेरे को नहीं मिला। मैं तो अतुल जी को बनाना है, आज बात करूंगा उनसे। कल रात तक बात हो रही थी। हाँ, उनका मैसेज तो आया हुआ था। हाँ, आज उनको बात करेंगे पूरी। ठीक है। सो कनेक्ट विद हिम। तो Okay. या सो मतलब आपको उनकी जिंदगी में घुस जाना है कि उनके क्या सपने हैं और उसको कैसे आप हेल्प कर सकते हो पूरा करने में, और उनकी जिम्मेवारी ये है कि आपके सपने पूरे हों। राइट? क्या बात है, आज हमारे बहुत कम पार्टिसिपेंट्स आए हैं अभी तक। Mutual buddy. रंजन जी, आपका बडी कौन है? सुशील। ओके। मैं आपसे कुछ शेयरिंग करूं। हाँ जी, जरूर जरूर। दीपक है यहाँ पर एंड ओके। हाँ जी, प्लीज गो अहेड एंड शेयर। हाँ, मैं बताऊं आपको कि मेरे साथ रियली मिरेकल हुआ है। हाँ जी, बताएं। और वो मिरेकल ये है कि ये जो हर्पीस है ना, ये 2 to 4 वीक लेती है। जी। और मेरे को इतना अच्छा रिलीफ हुआ कि फर्स्ट तो ये कि मुझे सेम डे मैंने जो है डायग्नोज कर लिया कि ये हर्पीस है। हाँ। और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। और आज वीक हुआ है और मैं 80% जो है रिलीव्ड हूँ। Wow. See, that is what the chapter says. कि it actually gives you a speedy recovery. आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और जबकि मेरी सिस्टर इन लॉ को तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। और मेरे को एक वीक में इतना अच्छा रिलीफ है। और मतलब रियली आई एम थैंकफुल टू यू। और मैंने खूब ग्रेटिट्यूड दिया है बहुत को पूरे वीक। लिख Yeah. के भी दिया है। So that is the magic of gratitude. Yeah. So congratulations, and may you get cured even more faster. आई थिंक इस वीक में कंप्लीट क्योर हो जाए। Yeah. अगर आप कह रहे हो तो जरूर हो जाएगा, because what you say is what you create in your life. Yeah. Because your words have lot of power. नहीं, इस बार हमने बिल्कुल मतलब बिल्कुल ग्रेटिट्यूड में रहे। और इतना मतलब मिराकुलसली, नहीं तो लोगों को 3 days तो डायग्नोसिस में ही लग जाती। Yeah. और मैंने उसे देखा बस। और मैंने कहा अरे ये तो हर्पीस लगती है।
मतलब तुरंत मैंने उसे डायग्नोज कर लिया और तुरंत ट्रीटमेंट, उसी समय मेडिसिन ले ली और नेक्स्ट डे फिर मैंने डॉक्टर को भी consult कर लिया। Yeah, so great. So thank you so much for sharing that. And आपने ये महसूस किया होगा कि जब आपने अभी ये दूसरी या तीसरी या चौथी बार ये सेशन किया है तो आपका लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है ना? Of course. या अगर आपने ये फर्स्ट मंथ में किया होता तो शायद आपको ये चीज दिमाग में ही नहीं आती कि मैं ग्रेटिट्यूड कर लूं इसके लिए. या थर्ड है मेरा, और इस बार रिलीजियसली होमवर्क करा है। या बिकॉज अब थोड़ा सा उसकी हैबिट होती जा रही है ना ग्रेटिट्यूड करने की, तो वो धीरे धीरे मतलब इट कम्स ऑटोमेटिकली कि यहाँ पर क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना है. क्योंकि बुक कहती है जहां पर भी अगर कुछ ठीक नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जितना आप चाहते हो, तो क्या वहां पर कमी है, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है. करना क्या है, ग्रेटिट्यूड बढ़ा दो. इट्स सो सिंपल ना. या अगर आप देखना शुरू करें तो कितना सिंपल है कि जहां पर भी जिंदगी काम नहीं कर रही है, चाहे वो आपका हेल्थ है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो पैसा है या कुछ भी एरिया आपकी लाइफ का, जहां पर भी कुछ चैलेंज है या जहां पर भी कुछ स्ट्रगल है, इसका मतलब वहां पर लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है. और करना क्या है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड बढ़ा दो. सिर्फ ग्रेटिट्यूड। So thank you so much for sharing that. थैंक Anybody यू। else wants to share anything before we start today's chapter? Okay, so who's going to read today's chapter? And जिनके अभी तक buddies नहीं बने हैं, please आज अपने buddies से connect जरूर कर लें और अपने buddies बना लें. Yeah. Okay, so I'm bringing आज the. तो मैं रीड कर सकती हूँ। Okay, I'll just bring it to the screen. Okay. Day 17. हाँ जी, पढ़े. Day 17, the magic check. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. आवाज आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर आ रही है. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Barrow, 1914 to 1997, writer and poet. ओके, तो ये बुक कह रही है कि जिंदगी में कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते और कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते. हमें लगता है ना ये तो कोइंसिडेंस है. आपने किसी को याद किया, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, एंड आउट ऑफ द ब्लू दैट पर्सन कॉल्स यू. आप कहते हो वो व्हाट अ कोइंसिडेंस यार, मैं तेरे बारे में आज बात कर रहा था. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, बिकॉज आपने उसके बारे में सोचा. यू विल्ड इट टू हैपन. आपकी वाइब्रेशंस ने वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजी और वो मैनिफेस्ट हो गया आपकी लाइफ में. सो सिमिलरली अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है तो वो एक्सीडेंट भी कोई ऐसे नहीं हो गया कि एक्सीडेंट हो गया, कहीं ना कहीं हमने उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया होता है. मैं बहुत छोटी सी बात बताती हूँ. अभी मैं अपना लैपटॉप ऑन कर रही थी एंड मतलब आई वाज जस्ट सेटिंग इट अप एंड ऑल, एंड सडनली दिमाग में आया यार एक दिन क्या हुआ था ना, एकदम से लैपटॉप बंद ही हो गया था मुझे. अगर ऐसे हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम है. एंड यू वोंट बिलीव इट, मेरा लैपटॉप बंद हो गया. एंड आई सेड ओ नो. मैं सारा टाइम तो सबको बोलती रहती हूँ सोचने से पहले या बोलने से पहले सोचो, डोंट थिंक नेगेटिव एट ऑल. और मेरे ये सोचते ही मेरा लैपटॉप बंद हो गया. एंड मैं उसको देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कहाँ से क्या हुआ, क्या लूज कनेक्शन हुआ, अच्छा खासा ऑन हुआ था, ये बंद क्यों हो गया. Yeah, and then I started paying gratitude. Thank you so much. You've been, supporting me in doing so much work and all. And within few seconds, it started again. But इतने दिन से मेरा लैपटॉप मतलब बंद होता ही नहीं है मेरा लैपटॉप. And ऑन किया हुआ बंद हो गया. So ये क्या था? It was not a coincidence कि मैंने सोचा और वो बंद हो गया. It was I was attracting it into my life. क्योंकि I willed it to happen. सो सिमिलरली हमारी लाइफ में जो भी होता है, अगर वो रिश्तों में कुछ हुआ,
आपने कुछ चाहा वो नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपने ही उसको अट्रैक्ट किया है। और अगर आपके पास पैसा आप चाह रहे हो और वो पैसा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ही उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप वरिड हो उसके बारे में, या आप एंग्शियस उसके बारे में, या आप कंप्लेन कर रहे हो उसके बारे में, है ना। तो सिमिलरली लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं है, और जो कुछ भी होता है somebody has willed it. So that is what this book is talking about. तो आज का हमारा जो चैप्टर है, it is about money. तो चेक की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पैसे की बात कर रहे हैं, रोकड़े की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 मनी के चैप्टर्स और किए हैं। तो आई वांट यू टू राइट इट इन द चैट बॉक्स कि वो कौन से 2 चैप्टर्स थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था, और मे बी समबडी कैन अनम्यूट एंड स्पीक कि हमारे जो चैप्टर्स हमने पहले किए हैं उसमें हमने क्या सीखा था और हमने क्या उसमें से क्या प्रैक्टिस किया था। So I really want somebody to unmute and speak. And rest of the people can write it. Do they remember? And what was that one sentence which we wrote and kept it alive for us? जो फर्स्ट था वो तो पास्ट मनी के लिए थैंकफुलनेस का था। आई एम थैंकफुल टू द मनी गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ। Okay, और हमने पास्ट में क्या किया था? जो बचपन से लेके अब तक जो भी मनी था उसको ग्रेटिट्यूड पे किया था। हाँ, तो ये मनी कहाँ से आया था? ये मतलब जो भी रिलेटिव पेरेंट्स जिसने और भी भी दिया रिलेटिव था, ने जिसने या भी दिया था सारे मनी के लिए। हाँ, और सेकंड चैप्टर क्या था? बिल्स पे साइन करने थे जो हमने पे कर दिए थे। सिर्फ साइन करने थे? नहीं, थैंक यू ग्रेटिट्यूड पे। लिखना था, ग्रेटिट्यूड के साथ। हाँ, और अगर कोई बिल पे करने के लिए पैसे नहीं थे तो क्या लिखना था? थैंक यू फॉर द मनी। हाँ, तो अभी हमने क्या किया मनी के एरिया में, सबसे पहले हमने पास्ट के गड्ढे भरे, जहां जहां हमारा ग्रेटिट्यूड ड्यू था, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इस चीज के लिए भी ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, है ना। कि बचपन में जब हम स्कूल गए थे या हम जब छोटे थे तो हमारी स्कूल फीस भी किसी ने पे करी थी, हमें यूनिफॉर्म भी किसी ने लेके दी थी, किताबों के भी पैसे पे किए थे, है ना। ज्योमेट्री बॉक्स, वाटर बॉटल, शूज, अगर हम किसी ट्रिप में गए थे स्कूल से तो उसके भी पैसे पे किए थे। हमारे बर्थडे पे जो गिफ्ट्स मिले थे, बर्थडे सेलिब्रेट किए थे, या हमको वेकेशंस में गर्मी की छुट्टियों में कहीं गए थे, तो उस टाइम तो हम कमाते ही नहीं थे, हमारे पास तो पैसा ही नहीं होता था, पर किसी ने वो सब पैसा दिया, तो हमने उन सब के लिए कभी आज तक ग्रेटिट्यूड दिया ही नहीं, क्योंकि वी हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड। जहां पर भी हम चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वहां पर क्या होता है? लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, वहां पे ग्रेटिट्यूड नहीं होता है। और वो क्या कहती है, जहां पर ग्रेटिट्यूड है वहां पे हमें अबंडेंस मिलता है, और जहां पर भी ग्रेटिट्यूड नहीं है वहां जो हमारे पास है वो भी ले लिया जाता है। तो अगर आपके मनी की सिचुएशन जैसी भी इस टाइम पर है, तो उसका मतलब वो आफ्टर इफेक्ट है उसका जो आपने पास्ट में किया है, कि आपने अपने जो बचपन में जिन्होंने आपके लिए पैसा खर्चा, आपने उनको आज तक ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। आपके हिसाब से तो हमारे माँ बाप का फर्ज था, अगर आज भी हमारे ऊपर वो पैसा खर्च रहे हैं, आज भी हमारी पूरी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, तो आपको ये लगता है ये तो उनका फर्ज है ना। अरे नहीं भाई, उनका फर्ज नहीं है। उनका फर्ज इतना था आपको दुनिया में लाना और देखना कि आप जिंदा रहे। बट अगर उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया है, यू नीड टू बी ग्रेटफुल टू देम कि उनको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने वो पैसा कमाया तभी तो आपके ऊपर खर्चा है ना, तो ग्रेटिट्यूड तो बनता है। पर हमने तो अपने माँ बाप को कभी ग्रेटिट्यूड दिया ही नहीं था, या हमारे अंकल्स ने, आंट्स ने, जिन्होंने हमें भी गिफ्ट दिए या हमें घुमाने ले गए, है ना। बर्थडेज पे जो गिफ्ट्स मिले, हमने किसी चीज के लिए भी नहीं दिया था ग्रेटिट्यूड। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में जो मनी का चैप्टर था, हमने उन सब लोगों को मेमोरी लेन जाकर सबको ग्रेटिट्यूड दिया था, ताकि हमारा वो वाला जो कर्ज है हम उसको चुका दें। वो कर्ज ही है ना एक तरह से जो हमने नहीं दिया अभी तक। फिर हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसमें हमने बात किया था कि जब हमारे पास पैसे होते हैं और हम जब भी कोई बिल आता है तो हमें सबसे पहले नेगेटिव थॉट तब आता है, यार इतना बिल आ गया, कितना खर्चा होता है घर में, है ना। तो जहां पर भी नेगेटिव हम बोलते हैं
वहां पर ही मनी जो हमारी तरफ आ रहा होता है हम उसको रोक देते हैं, उसका फ्लो रोक देते हैं, राइट। तो हमने क्या किया था, हमने अपने जो पास्ट के 10 बिल जो हम पे कर चुके हैं उन बिल्स के ऊपर लिखा था थैंक यू पेड या एंड ग्रेटिट्यूड दिया था, राइट। और जो बिल पे करने वाले हैं, जो नए बिल्स आए हैं, उनके ऊपर हमने लिखा था थैंक यू फॉर द मनी। आपके पास पैसा है उसको पे करने के लिए या पैसा नहीं है उसको पे करने के लिए, बट वी रोट थैंक यू फॉर द मनी and giving gratitude for it that you have the money to pay it. And surprisingly, amazingly, things actually start working. आपको कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है और आप वो बिल पे करते हैं। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया और आप में से भी कुछ ने एक्सपीरियंस कर लिया होगा। सो दैट वाज चैप्टर नंबर 2। और हमने फर्स्ट चैप्टर में ही एक चीज जब हमने सबको पास्ट के सब लोगों को ग्रेटिट्यूड दिया था, तो ये बुक ने बोला था कि एक सेंटेंस आप लिखकर अपने साथ रखें। वो क्या सेंटेंस था? somebody just speak, unmute and speak. क्या सेंटेंस था? I am thankful to the money given to me throughout my life. Thank you for all the money I've been given throughout my life. Thank you for all the money I have been given throughout my life. और उसको आपने कैपिटल बोल्ड लेटर में लिखकर ऐसी जगह लगाना था जहां वो आपको दिखता रहे, ताकि आप जितनी बार उसको देखो और आपको याद आ जाए कि कितने लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। अगर आपने कुछ खरीदना चाहा और किसी ने आपको वो चीज गिफ्ट कर दी तो वो भी पैसा है। अगर आपको कहीं डिस्काउंट मिल गया तो वो भी पैसा है। यहाँ कोई खास स्कीम मिल गई 1+1 की तो वो भी आपको इक्विवेलेंट टू मनी है। तो इन सब चीजों के लिए जब आपने ग्रेटिट्यूड देना शुरू करना था और उसको लिख के अपने आसपास कहीं ऐसी जगह लगाना था जहां वो विजिबल हो, है ना। और सेकंड वाले हमने क्या किया था हमने, कोई अनम्यूट करे और बोले। नोट के ऊपर लिखा था। हाँ, जो ये सेंटेंस है उसको हमने नोट के ऊपर लिखा था और उस नोट को हमने अपने साथ कैरी करना था, है ना। और जितनी बार भी देखना था उतनी बार ही हमने उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना था। तो आज हमारा थर्ड चैप्टर है। हमने पास्ट के जो पास्ट में मिला था उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे दिया, जो प्रेजेंट में था, जो बिल्स के लिए हमने करा उसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड दे दिया। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट फ्यूचर एज फार एज मनी इज कंसर्न। तो ये हमारा चैप्टर मनी के एरिया में उसका फ्यूचर कैसे क्रिएट करना, हमें फ्यूचर में मनी जो चाहिए उसको कैसे अट्रैक्ट करना है उसके बारे में बात करने वाला है। I hope it is clear to everybody. Just write yes or no in the chat box. I just want everybody to just write yes or no. Are you clear about all the chapters on money now? I want somebody to mention that because I'm not able to see. Are you getting any responses in the chats? Because I can't see here. कोई चैट्स में लिख रहा है या नहीं लिख रहा है मुझे नहीं पता चल Yes, रहा। ma'am. लिख रहा है। Yes, सब लिख रहे हैं। लिख रहा है। ग्रेट, थैंक यू। ओके रंजन जी प्लीज शुरू करें। एक सेकंड में। या When you direct gratitude's magical power towards any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. ओके All bad. वन सेकेंड। जहां पर भी आपके पास नेगेटिव थॉट्स थे मनी को लेके कि हाय मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये बिल कैसे पे होगा या बच्चों की फीस कैसे जाएगी, तो जहां पर भी आपके पास ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं वहां पर जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड को रिप्लेस करते हैं नेगेटिव थॉट्स को विद ग्रेटिट्यूड, तो आपकी वो कंडीशन जो है वो अपने आप जो है वो ऑल्टर हो जाती है। इट एलिमिनेट्स दैट लैक ऑफ मनी and there will be money flow of money which will start happening in that area. The only thing is you have to just start doing gratitude, और वो gratitude जो positive energy है, जो positive feelings है, वो उस negative feeling को eliminate कर देगी। because एक time पर एक ही feeling रह सकती है, या negative रह सकती है या positive रह सकती है।
तो जैसे ही आप पॉजिटिव फीलिंग्स को क्रिएट करेंगे तो नेगेटिव फीलिंग्स अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगी, and that will bring abundance, or that will bring flow of money in that area. हाँ जी. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feeling about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. Okay, The 1 second. So जहां पर भी आपके पास नेगेटिव फीलिंग मनी की आती है, वहां पर मनी का फ्लो जो है वो कम हो जाता है या बंद हो जाता है. अब आपको लगता है कि अचानक से क्या हो गया, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था और ये मेरे बिजनेस में क्यों प्रॉब्लम्स आ गई, क्यों मेरा ये वाला कस्टमर पैसे नहीं दे रहा, या ये वाला मेरा जो क्लाइंट है वो उसने ऑर्डर क्यों देना बंद कर दिया. तो रीजन क्या होता है, या तो हमारा डिसअपॉइंटमेंट है. जब आपने ये सोचना शुरू करा कि इसने ऐसा क्यों कर दिया, तो वहां क्या है, डिसअपॉइंटमेंट है. और देयर इज आल्सो वरी, और फिर फियर भी आ जाता है कि पता नहीं आगे से भी ऑर्डर देगा कि नहीं देगा. तो जब आप ये सब फीलिंग्स रखते हैं तो वहां पर आपका पैसा जो है वो रुक जाता है. इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ मनी. आपको जो भी सिचुएशंस है वहां पर अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करना है कि आपने फीलिंग्स को नेगेटिव नहीं जाने देना है. अगर आप किसी और के बिजनेस को देख के चल रहे हैं कि हमारे तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे, इसके तो ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आए जा रहे हैं, और अगर उसने नई गाड़ी खरीद ली, देखो यार हम तो वी आर अनेबल टू मीट आवर एंड्स मीट. हम तो अपना पूरा क्या कहते हैं खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ये इसकी तो गाड़ी आ गई नहीं, या ये तो फॉरेन ट्रिप पे चला गया, हमारे पास तो घर के लाले चल रहे हैं अभी. तो जब आप किसी चीज को देख के जलते हैं, किसी और के पैसे को देखकर जब आप जलते हैं, तो आप अपनी लाइफ में मनी को रोक रहे हैं. वो पैसा नहीं आएगा आपकी लाइफ में बिकॉज यू आर होल्डिंग नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स मनी. आप उस इंसान के प्रति नहीं है नेगेटिव. हो सकता है आप बहुत अच्छे दोस्त हो, बिजनेस में होता है ना, जब एक ही बिजनेस में हो तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं, बड़े अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, और मतलब आपकी आपस में अच्छी तालमेल होती है, और आप बिजनेस के बारे में काफी डिस्कशंस भी करते रहते हैं एंड ऑल दैट. और सडनली उसके पास पैसा ज्यादा आ गया तो आपको वही इंसान से खुंदक आने लग जाती है. तो उस इंसान से तो कोई आपको है नहीं ना प्रॉब्लम तो आपको उसके पैसे से हुई है ना. तो वो रिश्ते जो बिगड़ रहे हैं वो पैसे की वजह से बिगड़ रहे हैं. अदरवाइज भी हम कहते हैं ना कि जहां पैसा आता है वहीं पे रिश्ते बिगड़ जाते हैं. कहते हैं ना हम, बिजनेस अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं करना चाहिए बिकॉज ये रिश्ते बिगाड़ देता है. क्योंकि रिश्ते हमारे अच्छे होते हैं, बस जैसे ही पैसा आता है, जैसे ही हम पैसे को लेकर ये ऐसे नेगेटिव भावनाएं रखना शुरू करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है या वरी हो जाती है या हम जलना शुरू कर देते हैं, वहीं पर हमारे रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं और पैसे का फ्लो भी रुक जाता है. हाँ जी. The law of attraction says that like attracts like. So, if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. Okay, If you so are- what does law of attraction says? Like attracts like. अब जैसी ही फीलिंग्स आप यूनिवर्स में भेजते हैं वैसी ही सिचुएशंस और आपकी लाइफ में आती हैं to feel happy or negative, whichever feeling you are sending. तो अगर आप disappointed हैं पैसे को लेकर और वो वाली फीलिंग्स वो वाली वाइब्रेशंस आप जनरेट कर रहे हैं, वही यूनिवर्स में जा रही हैं, तो होगा क्या, आपकी लाइफ में ऐसी ही और सिचुएशंस आएंगी जिससे आप और डिसअपॉइंटेड होंगे पैसे को लेकर. So this is how the law of attraction works. हाँ जी. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. अच्छा, कुछ हाँ. कुछ लोगों को बड़ा डर लगा रहता है पैसा. They feel very ऐसा लगता है कि मैंने तो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया है, पता नहीं ये पैसा डूब ना जाए मेरा.
मैंने इस वाले स्टॉक में लगाया है, ये स्टॉक आई होप इट इज डूइंग वेल। आप उसको हर टाइम चेक करते रहते हो, हाई ये नीचे ना चला जाए, हाई ये नीचे ना चला जाए, तो होता क्या है, वो नीचे ही जाएगा। जितना आप उस चीज से डरेंगे, जितना भी आप उस चीज का फियर करेंगे कि मैंने स्टॉक में पैसा लगाया, इस वाले स्टॉक का पैसा मेरा नीचे ना चला जाए, क्योंकि फियर है वहां पे, उतना ही फियरफुल आपके लिए और सिचुएशंस हो जाएगी। वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा तो आपका फियर और बढ़ जाएगा, यार ये तो सच में नीचे जाना शुरू हो गया, मेरा पैसा ही ना डूब जाए। और जब आप ऐसे बोल रहे हैं तो आप और उसको फियरफुल बनाते जा रहे हैं, और जितना फियर उसमें डालते जा रहे हैं उतना ही आपको और ऐसी सिचुएशंस मिलती जाएंगी कि आपके बाकी के स्टॉक्स भी नीचे जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने फियर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। हाँ जी। However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you have currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't grateful for money You and can't be grateful. You can't you be can't grateful. be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be think grateful thought about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thought about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. ओके, तो जो हमने ऊपर पढ़ा कि जब आप नेगेटिव थॉट्स होते हैं आपके मन में, तो आप मोर नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। तो वही वो बात कर रहा है कि अगर आप डिसअपॉइंटेड हो तो आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स ही बढ़ेंगी मनी को लेकर। अगर आप फियरफुल हो तो वो फियर फियर ही बढ़ेगा। अगर आप जेलस है तो आपको और ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी कि बाकी सबके पास पैसा आता जाएगा और आप और एक से जलते थे, फिर आप दो से जलोगे, फिर आप 10 से जलोगे, फिर आप आपको सारी दुनिया से जलन होनी शुरू हो जाएगी कि सभी के पास पैसा आ रहा है, मेरा ही क्यों नहीं आ रहा, है ना। तो दैट इज व्हाट दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट। बट व्हेन यू रिप्लेस योर फीलिंग्स विद ग्रेटिट्यूड, जहां जितना भी पैसा है, कम है ज्यादा है, आप वहीं पे उसके लिए जब ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दोगे, तो सिचुएशंस अपने आप ऑल्टर होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जहां पर ग्रेटिट्यूड है वहां डिसअपॉइंटमेंट नहीं रह सकता, जहां पे ग्रेटिट्यूड है वहां फियर नहीं रह सकता, और जहां पे ग्रेटिट्यूड है वहां पे आप जेलस नहीं फील करोगे, बिकॉज यू विल बी फीलिंग ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है तो आप उसके लिए ही ग्रेटफुल रहोगे कि थैंक यू मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ये खरीद सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपने रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट कर सकता हूँ। जो भी आपके दिमाग में आएगा, जब आप ऐसी चीजें देखना शुरू करते हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, जैसी भी सिचुएशन है, कम है पैसे या ज्यादा है, तब उस सिचुएशन में जब आप जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हो, तो वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो एलिमिनेट होके वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय ग्रेटिट्यूड। और जब आप ग्रेटिट्यूड दोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, आपको ऐसी और सिचुएशंस देगा जिसमें आप ग्रेटफुल हो सकते हो। दैट मींस इट विल स्टार्ट द फ्लो ऑफ मनी इनटू योर लाइफ। हाँ जी। You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So, before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. Money ओके, can come to you. एक मिनट, इसको दोबारा पढ़ देंगे प्लीज। Full para. हाँ जी, यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। You have already practiced या gratitude for the money you have received and continue to receive. So, before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time
your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. Okay, so what it says is कि हमने जो दो पहले सेशंस करे हैं मनी को लेकर, उसमें हमने ऑलरेडी मनी के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दिया है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो तो मनी किस किस तरह से आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। और जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो तो वो रिचेस जो है, दैट मनी एंड रिचेस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन योर लाइफ। जब हम आज के चैप्टर में समझेंगे कि वो किस किस तरह से आता है हमारी लाइफ में और हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू करेंगे, तो वी विल इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी। और अगर हम कहीं पर भी वरी या कुछ ऐसे फियरफुल थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स लाते हैं तो वो अबंडेंस को वहीं पे रोक देता है, तो वो अबंडेंस के फ्लो को हमारी लाइफ में आने से रोक देता है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या क्या चीजें हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, ये दिस इज ऑल्सो लाइक मनी फॉर अस, और उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। हाँ जी। Money can come to you through receiving an book, an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there is a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So, whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. ओके, अब जब पैसा किस किस तरीके से आ सकता है, हो सकता है आपको कोई अनएक्सपेक्टेड चेक मिल जाए, आपका कोई रिफंड आने वाला हो, रिफंड आ गया, या आपको सैलरी इंक्रीज मिल गया, है ना। अब जैसे हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो उसका रिफंड आ जाता है कई बार, और आपको नहीं पता होता कब आने वाला, बट अचानक आपके अकाउंट में रिफंड आ गया और आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, सो मच मनी हैज बीन रिफंडेड बैक टू योर अकाउंट। सो दैट इज अनएक्सपेक्टेड मनी, है ना। या आप जैसे किसी के घर गए हैं मिलने के लिए और उसने आपको शगुन डाल दिया, या आपके घर में कोई आया, आपके बच्चे को कोई पैसे दे गया, शगन दे गया। मतलब हमारे टाइम पे तो बहुत आता था कि जो बड़ा कोई घर पे आता था तो बच्चे को कुछ ना कुछ पैसे देके चला जाता था, मतलब 5, 10, 20 जितने भी होते थे उस जमाने में। तो यहाँ आप किसी फंक्शन पे गए हो और आपको नहीं पता था कि वहां से कुछ मिलने वाला है, सडनली आपको जैसे गुजिया का पैकेट मिल गया। अब जैसे होली आ रही है, आप किसी को मिलने गए, उसने गुजिया का पूरा पैकेट आपको एज अ गिफ्ट दे दिया, है ना। तो दैट इज ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड मनी, बिकॉज गुजिया तो पैसों से ही आता है, अगर आप खरीदने जाते तो आप पैसा खर्चते, राइट। तो सिमिलरली आपने अगर कोई चीज खरीदने गए और आपको उसके ऊपर कैशबैक मिल गया, जैसे आप ऑनलाइन आजकल जब परचेजेस करते हैं तो आप अपना कुछ कुछ कार्ड्स पे होता है कि यू विल गेट सो मच मनी बैक, या इतना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो दैट इज ऑल्सो लाइक मनी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे गए या लंच पे गए एंड somebody else paid for your dinner, और अगर आप वो नहीं पे करता तो आप पे करते, तो दैट इज इक्वल टू मनी अगेन, राइट। तो इस तरह से जब आप देखना शुरू करते हो, जब आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी होता है, तो इफ यू टेक अ पॉज एंड थिंक, डज इट मीन आई गॉट मनी? क्या ये पैसे के बराबर है जो मुझे मिला है अभी? तो जब आप उसके बारे में सोचते हैं और उसके लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ मनी इनटू योर लाइफ, you are actually attracting money into your life. Yeah, please continue. If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package
your money magically increased through the savings of money. Are you getting the idea of unlimited situations where you can receive money? Okay, Most likely, okay, 1 second. So मान लीजिए आपने कुछ खरीदना है. अब जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसको बड़ी धुन चढ़ रही थी कि मुझे ना वो स्लिमिंग बेल्ट खरीदनी है. तो शी जस्ट स्पोक टू अनदर फ्रेंड ऑफ आवर्स के यार मैं सोच रही हूँ ना, मेरे को अपना वो थोड़ा सा अपना मिड वेस्ट और स्टमक को कम करना है, तो वो स्लिमिंग वाली जो बेल्ट होती है ना, मैं सोच रही हूँ वो ऑर्डर कर दूं मैं. तो शी से पागल है क्या, दूसरी वाली जो फ्रेंड जिससे वो बात कर रही थी, ये पागल है क्या, हमें पैसे बर्बाद करिए, मेरे पास पड़ी हुई है, कोई नहीं यूज करा, तो मेरे से ले लो. सो समथिंग लाइक दैट. अगर वो बेल्ट खरीदती तो उस पर पैसा स्पेंड करती, बट somebody has gifted that to her which is equivalent to money, है ना. एंड अगर आपने कोई चीज खरीदी, उसके ऊपर आपको कुछ डिस्काउंट मिल गया, जैसे अगर आप आजकल जैसे ट्रैवल एंड होटल्स में बहुत डिस्काउंट मिल रहे हैं बिकॉज कोरोना के चक्कर में पीपल हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग. तो जो मतलब मान लो कोई पैकेज है जिसका ओरिजिनल प्राइस जो मान लो एक्स अमाउंट, मान लो आप 25,000 रुपए है, and because of the situation right now they are offering it at 15,000 rupees. तो वो 25 वाला जो पैकेज आपको 15 में मिल रहा है, that 10,000 is equivalent to the money you are receiving, right? और आपने कोई चीज खरीदी, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल गया, या आपने कोई लोन लिया हुआ है और बैंक ने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया मान लो एफडी में या पोस्ट ऑफिस में, और गवर्नमेंट ने उसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा दिया. सो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक यू गेटिंग मनी. या तो अभी आपको आइडियाज हो रहे होंगे कि मनी आपको आपकी जिंदगी में कैसे कैसे आता है, जिसको हमने कभी कंसिडर ही नहीं किया कि ये पैसा है. हमारे लिए पैसा वही है जो हमारे हाथ में आता है ना, जो हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं. We only talk about money in that term, but all this also is equivalent to money you are receiving in your life. हाँ जी. any circumstance that आपकी आवाज नहीं आ रही है रंजन जी. okay. Any circumstance that results in you having more money or receiving something that cost. आपने इससे पहले वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ा. Most likely you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it is not luck at all. It is universal law. हाँ, तो जैसे बोलते ना यार ये बंदा कितना लकी है ना, ये जो मांगता है इसको मिल जाता है ना. देख इसको ये चीज खरीदनी थी, इसको इस पर डिस्काउंट मिल गया, मतलब मैंने तो इतने रुपए का खरीदा था, इसको देखो इतना सस्ता मिल गया. तो ये कोई गुड लक नहीं है, उसने अट्रैक्ट किया है उस मनी को, बिकॉज व्हेन ही इज गेटिंग इट चीपर देन व्हाट यू पेड फॉर इट, जितना डिफरेंस ऑफ मनी है दैट इज इक्वल टू मनी ही इज रिसीविंग. तो कहीं ना कहीं वो ग्रेटिट्यूड दे रहा है, इसकी वजह से उसकी लाइफ में ये सब हो रहा है. तो आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है या इसकी लक है, ये बंदा तो बहुत लकी है, बट इट इज नॉट गुड लक और इट इज नॉट कोइंसिडेंट, इट इज लॉ. इट्स अ यूनिवर्सल लॉ व्हिच इज एट प्ले. It is the law of attraction which is attracting that in that person's life, and you can also attract it now. You also know how to do it. Hanji. Any circumstance that result in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. Okay, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा ना आपको जादू का एक फॉर्मूला दिया गया है कि जब जॉय एंड ग्रेटिट्यूड को आप मिलाते हैं, आप किसी को चीज को लेके बड़े खुश होते हैं और खुश होके जब ग्रेटिट्यूड देते हो, एक होता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपने मुझे ये दे दिया, एक होता है
wow, I'm so happy, I'm so grateful that I've received this, So there's a difference. जब आप joy के साथ gratitude को club करके gratitude देते हो, तो उसमें एक चुंबकीय शक्ति आ जाती है. एक आपने gratitude दिया तो वो तो है ही है, gratitude तो काम करेगा ही करेगा. But when you joy and gratitude को आप जोड़ के और उससे जब gratitude देते हो, तो उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स होती है जो हर उस चीज को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगी जो आप चाहते हो. So now onwards, whenever you paying gratitude, नाचने का मन करता है तो नाच के बोलो आई एम सो हैप्पी. और आप जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसका हस्बैंड क्या करता है, उसको कुछ भी मिलता है, अगर छोटा सा ऑर्डर भी मिलता है ना, तो वो घर में आके उसने एक म्यूजिक रखा हुआ है, मतलब वो भांगड़े का म्यूजिक. वो जैसे ही वापस आएगा अपनी शॉप से, वो आते वो म्यूजिक चलाता है और सब जने वो नाचना शुरू करता है. सबको पता चल जाता है कि देयर इज अ गुड न्यूज, एवरीबॉडी स्टार्ट्स डांसिंग. सो दैट इज देयर वे ऑफ पेइंग ग्रेटिट्यूड. और वो जितना खुश होता है उतनी उसकी जिंदगी में अबंडेंस आती जा रही है. मतलब एक शोरूम से 4 शोरूम हो गए या एंड थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग ऑन इट्स ओन, बिकॉज वो हमेशा शुक्राने में ही रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है. तो जब आप जॉय एंड ग्रैटिट्यूड दोनों को जोड़ के ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हो, तो यू बिकम अ मैग्नेट विच विल अट्रैक्ट ऑल द गुड थिंग्स इन योर लाइफ. जब यहाँ पर हम मनी की बात करें, तो जब आप खुश होके मनी के लिए ग्रैटिट्यूड देते हो, अगर आपको कोई 10 रुपए भी कहीं से एक्स्ट्रा मिल गए, मान लो आपने अपने कहीं पे कपड़े रखे हुए थे गर्मियों के, अभी जैसे गर्मियों के कपड़े निकाल रहे हैं, सर्दियों के रख रहे हैं, आपने अपने कोई गर्मियों के कपड़े निकाले, आपने बोला आज मैं ये वाली पैंट पहन लेता हूँ. आपने जैसी पैंट पहनी, आपने जेब में हाथ डाला और उसमें से आपको निकला 100 रुपए का नोट मिल गया. यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट, इट इज अनएक्सपेक्टेड ना. And you feel happy. Wow, मुझे सुबह सुबह पैसे मिल गए आज तो. And you're feeling happy about it and you're paying gratitude. That is how you're attracting abundance. Because तब आप बन जाते हो magnetic force, जो खींचेगा उसको आपकी तरफ और पैसे को आपकी तरफ लेके आएगा. So this is the छोटा सा यहाँ पर उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया आपको. हाँ जी. When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere, but I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I Okay, was grateful. pause. So यहाँ पर जो राइटर है, जो रोंडा है, वो लिख रही है कि she was when she moved to USA, she was happy. अब ये सपना तो बहुत लोगों का है कि मुझे अमेरिका जाना है ना. लोग पता नहीं कितने लाखों रुपए कनाडा जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए लाखों रुपए देने को तैयार हैं कि हमारा वीजा लग जाए या हमें वहां जाना है, क्योंकि उनको लगता है कि वहां की जिंदगी जो है वो जन्नत है और बहुत हद तक बेहतर भी है हमारे यहाँ से. एंड तो वहां पे जब ये वहां पर गई तो उसको सबसे ज्यादा खुशी ये हो रही थी दैट शी हैज कम टू यूनाइटेड स्टेट्स, और उसको काम भी मिल गया था. ये सोचो ना, आपको उसको वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी कि मैं काम ढूंढ रही हूँ, तो उसको काम भी मिल गया. And then she was very happy about it that she's in United States and she was happy that she has a job. तो उसने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया. तो वहां पे जो अपार्टमेंट रेंट पे आप लेते हो, तो वहां पे आपको मतलब एक बेसिक जो होता है ना, वो जैसे सर्विस अपार्टमेंट्स नहीं होते, ऐसे आपको एक बेसिक अम्यूनिटीज मिल जाती हैं. आपको वहां पे बेड मिल जाएगा, मैट्रेसेस मिल जाएंगी, आपको किचन में ये जैसे वो बोल रहे हैं 4 चम्मच, 4 प्लेटें, 4 कटोरियां, 4 ग्लास, ऐसे वहां पे आपको मिल जाएगा. एक आपको स्टोव मिल जाएगा, एक दो बर्तन मिल जाएंगे, जैसे फ्राइंग पैन मिल जाएगा, या आपको हॉट प्लेट मिल जाएगी. ऐसे आपको कुछ कुछ चीजें जो है, जो बेसिक चीजें होती है ना आपको जिंदा रहने के लिए, वो सब आपको वहां मिल जाती है. तो दैट इज व्हाट शी इज टॉकिंग, कि उसको वो वहां पे आके खुश थी. 1 that she's come to USA, 2 that she has a job, तीसरा she was happy with the place जहां वो रह रही थी. उसके पास कोई फर्नीचर नहीं था, वो लैपटॉप को अपनी गोद में रख के काम करती थी, बट शी वाज हैप्पी. या So this is what she's talking about, that she was happy with whatever she had at that moment.
हाँ जी. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift me a driver and a car for a month or for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly, I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. ओके, सो वो कह रही है क्योंकि वो खुश थी, क्योंकि वो अमेरिका आ गई, उसके पास जॉब थी और उसके पास वो घर था रहने के लिए. शी वाज हैप्पी. शी वाज नॉट क्रिबिंग अबाउट इट के क्या यार अच्छा खासा घर था मेरा, अच्छी खासी मेरे पास गाड़ी थी, यहाँ पे मेरे पास कार भी नहीं है, मुझे हर जगह पैदल जाना पड़ता है, या पब्लिक, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत कम होता है और बहुत दूर दूर होता है, बिकॉज एक तो बहुत बड़ी कंट्री है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने पे पीपल कीप वॉकिंग. वहां पे लोग चलते बहुत हैं. अगर आप न्यूयॉर्क में भी जाओगे तो लोग गाड़ियां कम लेके आते हैं, सब मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, और उनके ऑफिसेस काफी दूर होते हैं, वो मेट्रो से उतर के भी पैदल चल रहे होते हैं. तो वहां पर तो शी वाज हैप्पी कि उसके घर के पास टैक्सी स्टैंड भी था, अगर कोई भी उसको टैक्सी की जरूरत पड़े तो वो टैक्सी भी ले सकती थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम शी यूज्ड टू वॉक, एंड शी वाज हैप्पी विद ऑल दैट. सडनली आउट ऑफ द ब्लू कोई जान पहचान वाले ने उसको बोला कि मैं अपनी गाड़ी और ड्राइवर तेरे को कुछ महीनों के लिए देना चाहता हूँ. कैन यू इमेजिन, जिसके पास अपने मतलब खाने रहने के लिए बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, मतलब फर्नीचर भी नहीं, लैपटॉप भी गोद में रख के काम करती है, उसको सडनली गाड़ी और ड्राइवर मिल गया. क्यों? बिकॉज शी वॉज ग्रेटफुल. या तो इसी तरह से अगर आप ग्रेटफुल होगे जो आपके पास अभी है उसके लिए, तो आपको यूनिवर्स और ऐसी चीजें देगा. यहाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, जब आपके पास जितना भी पैसा है, जिस भी फॉर्म में आपको पैसा मिल रहा है, जिस भी तरीके से आपको पैसा मिल रहा है, आप उसके लिए जब ग्रेटिट्यूड देते जाओगे, जितना अबंडेंस में आपका ग्रेटिट्यूड बढ़ता जाएगा, उतना मनी का फ्लो आपकी लाइफ में आता जाएगा. हाँ जी. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know that you are going to spend the money on. Money is a means to what you. ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर. सो अभी आज का जो चैप्टर है या आज की जो प्रैक्टिस है, उसमें आपने क्या करना है, इसमें एक मैजिक चेक बना हुआ है, आपने उस चेक के ऊपर अमाउंट लिखना है जो आपको फ्यूचर में चाहिए. आपने कुछ खरीदना है, आपने किसी एक चीज के लिए चेक लिखना है. बहुत बड़ा अमाउंट मत लिखिएगा, बिकॉज अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट लिखोगे तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड कितना देना है आपको नहीं पता है अभी. तो अगर मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है, आपने मान लो एक नया मोबाइल खरीदना है, आपका वो मोबाइल कितने का आता है आपको पता है, तो आपने उतना अमाउंट अगर चेक में लिख दिया, एंड बिकॉज बिकॉज देन यू नो कि ये अमाउंट मिलेगा तो मैं ये वाला मोबाइल खरीदूंगा. ठीक है ना. तो आपने कोई ऐसी चीज के लिए जो आपने खरीदनी है, जो आप चाहते हो खरीदना, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट जितने की वो आती है उतना ही अमाउंट भरना है. और अभी तक जितने भी हमने सेशंस किए हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ अपने लाइफ में इस मैजिक चेक से अट्रैक्ट किया. मैंने खुद किया है. अचानक कहीं से जितना भी मैंने अमाउंट लिखा था उसके आसपास का अमाउंट मेरे पास आ गया. कुछ लोगों ने एग्जैक्टली उतना अमाउंट अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया, कुछ लोगों ने उससे भी ज्यादा अट्रैक्ट किया. तो आपने करना क्या, आपने एक मैजिक चेक लेना है. मैं आपको भी चेक भी दिखाती हूँ, इसमें बना भी हुआ है. तो आपने उसमें अपना नाम लिखना है, आज की डेट लिखनी है, और आपको कितना पैसा चाहिए उसको इमेजिन करना है आपने कि आपने किस चीज के लिए लेना चाहिए वो पैसा, और वो पैसे को और उस अमाउंट को आपने उसमें भरना है. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट टू डू. Money is a means to what you want.
but it is not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. ओके अगर आपने लिखा कुछ पैसा लिख दिया कि मुझे इतना पैसा चाहिए, पर क्यों चाहिए भाई? पैसे को तो आप खा नहीं सकते हो, पैसे को आप पहन नहीं सकते हो, पैसे को आप ओढ़ नहीं सकते हो, पैसे से कुछ खरीदोगे ही ना, सर्विसेज या कुछ मटेरियल, कुछ तो करोगे ना उसका पैसे का। अगर आपको पैसा चाहिए नई गाड़ी खरीदने के लिए, तो वो गाड़ी है जो आप खरीदोगे पैसे से, पैसा तो नहीं चलाओगे ना सड़क पे। या अगर आपको फ्रिज खरीदना है, तो आपको फ्रिज खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसे से आप चीजों को सेफ या ठंडा गर्म नहीं रख सकते हो। सिमिलरली आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि people with so much money were feeling so helpless. अगर खाना नहीं मिल रहा था, तो वो उनका पैसा भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए पीपल वर होर्डिंग द फूड। सब लोग सब्जियां और सब ग्रोसरी ला के भर रहे थे अपने घर में कि पता नहीं कब तक लॉकडाउन चलेगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। बट अगर आपके पास पैसा है और आपकी कोई चीज खत्म हो गई है, बट इट मार्केट इज क्लोज्ड एंड यू कैन नॉट बाय इट, कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? क्या वो पैसे को आप खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। और अगर आप जिनको भी उस टाइम पे ये गॉड फॉरबिडन जो भी ये प्रॉब्लम हुई थी कोरोना की, could they cure themselves with money? No, because money के साथ उनको वो मेडिकल एड चाहिए थी जो अवेलेबल ही नहीं थी। या तो मनी इज अ मीन्स टू समथिंग। मनी अपने आप में कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एन एनर्जी, है ना। तो जो आपको चीज चाहिए, आपने उसके लिए पैसा मांगना है। सिर्फ पैसा मांगने के लिए पैसा नहीं मांगना है, क्योंकि वो पैसा किस काम का? अगर आपने सिर्फ पैसा मांग लिया, वो पैसे से कुछ तो करोगे ना, मकान खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, ट्रैवल करोगे, कुछ तो करोगे ना, बच्चों को पढ़ाओगे, उनको अब्रॉड भेजोगे पढ़ने के लिए। तो किस चीज के लिए पैसा चाहिए? सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अभी आप जब चेक लिखोगे, तो आपने किसी एक छोटी चीज के लिए जो आपके दिमाग में अभी है कि मुझे ये चीज करनी है, हो सकता है आपको गोवा जाना हो 3 दिन के लिए, तो आपको पता है गोवा जाने के लिए मेरा कितना खर्चा आने वाला है, 3 दिन का ट्रैवल का और रहने का और खाने का एंड ऑल दैट। तो आपने उतना अमाउंट लिखना है। अगर आपको कुछ खरीदना है, तो आपने उस चीज का अमाउंट लिखना है। सो दिस इज हाउ यू सपोज टू फिल अप द चेक। ओके, या प्लीज रीड। You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from ये www.thesecret.tv मैजिक चेक। ओके, तो अभी इस चैप्टर के पीछे उन्होंने एक मैजिक चेक की फोटो दी हुई है। आप चाहो तो उसको फोटो कॉपी कर लो, आप चाहो तो उसको क्लिक करके उसको आप फोटोशॉप करके अपना नाम और अमाउंट डाल लो उसमें। और आप चाहो तो ये जो www.thesecret.tv/magic-check है, इस वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर तो बहुत सारे ब्लैंक चेक्स हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हो उनको। ठीक है, सो दीज आर द वेज हाउ यू कैन फाइंड आउट। तो मेरे तो एक फ्रेंड ने मुझे टेक्स्ट बना के भेजे हुए हैं, तो मैं इसमें से ही उन्होंने प्रिंट करा के, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जस्ट टू हेल्प पीपल, अगर आप इफ यू कैन सी इट, सो दिस इज अ मैजिक चेक, उन्होंने प्रिंट कराए हैं एंड दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल। या सो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज चेक्स, पर ये चेक यूनिवर्स, बैंक ऑफ यूनिवर्स का होना चाहिए। पता चला आप अपने अकाउंट का आपने चेक कार्ड बना लिया, उसमें तो पैसा आने नहीं वाला है, क्योंकि पैसा तो यूनिवर्स देने वाला है, तो यूनिवर्स के बैंक से तो लोगे ना। हाँ जी, पढ़े। If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check, and after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel
will make bigger amounts believable to you. ओके एक तो पीछे ना कुछ बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रही है. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी एल्स टू बी ऑन म्यूट. जो भी अनम्यूटेड है प्लीज अपने आप मैनेज करें. आई डोंट वांट टू डू दैट प्लीज. एंड बिकॉज थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रहे प्लीज, बिकॉज सब लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं. या थैंक यू. ओके तो अभी ये बोल रहा है कि आपने जब मैजिक चेक लिखना है तो उसको पहले आप छोटा ही अमाउंट लिखें, क्योंकि जब छोटा अमाउंट आपका आपके पास आ जाएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस आई हैव डन इट, है ना. तो जब आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड दोगे और आपको वो पैसा मिल जाएगा तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ इट वर्क्स एंड यू हैव मैनेज्ड इट. तब आप गोइंग फॉरवर्ड आप जितने मर्जी चेक पूरी जिंदगी लिखते जाएं, जितना पैसा चाहिए भर दीजिए. जब वो फुलफिल हो जाए तो नया चेक बना लीजिए. या तो आज आपने जो लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने जो पिछली बार चेक बनाया था, डोंट यूज दैट चेक, क्रिएट अ न्यू चेक टुडे. आप एक नया चेक लिखेंगे आज. जो आप अपने पिछली बार लिखा था वो फुलफिल हुआ है नहीं हुआ है, आप उसको अलग से एक जगह रख दें और इसको आप एक नया चेक आज लिखेंगे. या प्लीज कंटिन्यू. Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want. And put as much excitement and gratitude into it as you can. ओके Maybe तो ओके अगर मान लीजिए आपने अपना नया मोबाइल लेना है, ठीक है, वो मोबाइल आता है 30,000 रुपीज का. ले लेते हैं कोई भी दिमाग से, कोई भी एक ब्रांड सोच लो जो आपको मान लो चाहिए, और आपने उसके लिए चेक लिखा. तो आपने करना क्या है, आपने विजुअलाइज करना है कि आपको जो भी कलर चाहिए आपने वो मोबाइल जो है वो ऑर्डर किया. यहाँ तो आप शॉप पे जाके खरीदोगे, आप शॉप पे जाके उसको चेक कर रहे हो, देख रहे हो, यू आर फीलिंग इट. आप उसको हाथ में पकड़ के देख रहे हो, मेरे हाथ में कैसा लग रहा है, पूरा उसका साइज ठीक है कि नहीं है, फील कैसा है उसका. एंड देन यू आर ट्राइंग दी एप्स एंड ऑल दैट. या एचडी स्क्रीन है, कैसा लग रहा है इसके स्क्रीन पे, टच कितना अच्छा है, कैमरा कितना बढ़िया है. सो यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग दैट. और दी अदर थिंग यू कैन डू इज, अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो यू कैन इमेजिन कि आपका अमेजन वाला या फ्लिपकार्ट वाला डिलीवरी बॉय आया है आपका मोबाइल लेके, या अनबॉक्सिंग इट एंड यू फीलिंग सो मच ऑफ एक्साइटमेंट. वाओ मेरा फोन आ गया, मम्मा देखो यार, अपनी वाइफ को बुला के सुनो सुनो देखो मेरा फोन आ गया, कितना सुंदर है ना, कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना. एंड देन यू स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर की, इसका कैमरा ही देखते हैं सबसे पहले. आप अपनी किसी लव्ड वन की फोटो खींच रहे हैं और कुछ नहीं तो अपनी सेल्फी खींच रहे हो, यार कैमरा तो बढ़िया, आगे का भी अच्छा है पीछे का भी अच्छा है. एंड देन यू आर फीलिंग एक्साइटेड अबाउट इट. तो आपको इस तरह से कुछ सोचना है जिस चीज के लिए भी आप वो चीज के लिए वो पैसा मांग रहे हैं. और अगर मान लो आप 50 इंचेस का टीवी लेना चाहते हो, आपको अपना एलईडी लेना है, आपने उसके लिए मांगा पैसा, तो आप इमेजिन करो कि आपके घर में वो डिलीवर करने आ रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, और आप खड़े होकर देख रहे हो कि कहाँ लगाऊंगा, अच्छा यहाँ लगाता हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, कितना बढ़िया व्यू, कमरे के किसी भी एंगल से बैठ के देखूं, आई कैन सी इट एंड यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इट. तो आपने जिस चीज के लिए भी चेक लिखना है उस चीज को एक्सपीरियंस करना है, विजुअलाइज करना है. हाँ जी पढ़े यार प्लीज. आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी टू प्लीज बी ऑन म्यूट. ये पीछे जो भी साउंड आ रही है बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है. रंजन जी आपके बैकग्राउंड में तो नहीं है? नहीं मैम, नो. ओके हाँ जी पढ़े. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying that you want in a store. If you would purchase that you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your aeroplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you have really received it. ओके After तो अगर आपको ये पैसा इसलिए चाहिए कि आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं,
तो आपको उसको भेजने के लिए फ्लाइट की टिकट चाहिए होगी, आप उसके साथ जा रहे हैं तो दो लोगों की फ्लाइट टिकट चाहिए होगी। और I mean, just imagine that you've got the tickets with you and you are at the airport और आप वहाँ के एयरपोर्ट पे हैं। आप कुछ भी ऐसा इमेजिन करें कि जिससे आपको वो हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट फील हो, that joy you start feeling। या अगर आपने नाइकी के शूज खरीदने हैं या मुझे रनिंग करनी है सुबह और मुझे ये वाले कलर के जो लेटेस्ट आए हैं, मुझे ये वाले शूज चाहिए और ये इतने 1000 रुपए के हैं, तो आपने वो वाला अमाउंट लिखा, तो आप इमेजिन करेंगे कि आपने वो शूज खरीद लिए, आप शॉप पे जाके खरीद रहे हैं या ऑनलाइन ले रहे हैं और आपने वो शूज पहने हैं एंड वो पैरों में कितने अच्छे लग रहे हैं, एंड देन यू आर रनिंग ऑन द ट्रैक एंड यू फीलिंग एज इफ यू आप हवा में उड़ रहे हो, क्योंकि आपको इतनी खुशी हो रही है कि मैंने ये वाले शूज पहने हैं, दे सो कंफर्टेबल एंड दे मेकिंग द रन सो इजी एंड कंफर्टेबल। आप ऐसे लग रहा है जैसे पैरों में ना आपके पंख लग गए हैं, ऐसे अपने आप पैर उछल उछल के चल रहे हैं। तो आप कुछ भी ऐसा इमेजिन करें जिसके लिए भी आप वो चीज के लिए पैसे मांग रहे हैं। क्या? हाँ जी। After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions during the day today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. ओके, तो करना क्या है, आपने इसको चेक को अपने आसपास रखना है, अपने साथ कैरी कर लो या ऐसी जगह रखो जहाँ पे आपको ये दिखता रहे, और आज दिन में 2 बार एटलीस्ट आपने इस चेक को देखना है और उतनी ही एक्साइटमेंट फील कर रही है कि जैसे जिस चीज के लिए आपने मांगा वो आपको मिल गई है। या एंड फील हैप्पी एंड जॉयफुल एंड से ग्रेटिट्यूड। और अगर आपको ये जल्दी चाहिए तो आप दिन में जितनी बार देखना चाहते हैं उतनी बार देखें और एक्साइटमेंट एंड जॉय के साथ ग्रेटिट्यूड देते जाएं। और जैसे बाकी सब चैप्टर्स में भी बोला है कि अतिशयोक्ति आप कर ही नहीं सकते हो। इट इज नॉट इनफ कि आप बहुत ज्यादा कर गए ग्रेटिट्यूड, आप जितना भी ग्रेटिट्यूड करो वो कम है, तो यू कैन कीप डूइंग इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। हाँ जी। At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. हाँ, तो आज तो इसको अपने साथ कैरी करना है आपने, उसके बाद इसको घर पे ऐसी जगह लगा दें जहाँ पे ये आपको बार बार दिखता रहे, और जितनी बार भी इसको देखोगे आपने वो एक्साइटमेंट और वो हैप्पीनेस फील करनी है कि जिस चीज के लिए आपने वो अमाउंट लिखा है वो आपको मिल गई है। या सो दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। ओके, और इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, कंप्यूटर का बैकग्राउंड बना सकते हो, वॉलपेपर बना सकते हो, अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। हाँ जी। When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want and continue with the magic check practice as long as you want. ओके, तो आपने जब चेक का अमाउंट लिखा और आपने मांगी जो चीज कि मुझे इस चीज के लिए खरीदना है, बाय चांस, अगर नॉट बाय चांस, सॉरी, अगर किसी ने वो चीज गिफ्ट कर दी, मान लीजिए आपने जो मोबाइल लिखा, आपके घर में कोई आया बाहर से और वो आपके लिए वो मोबाइल एज अ गिफ्ट ले आया, इज एग्जैक्टली द सेम मोबाइल विच यू वांटेड, तो दैट टाइम आल्सो यू सपोज्ड टू पे ग्रेटिट्यूड। ये मत सोचना उस टाइम यार पैसा तो आया नहीं, मैं तो इस मोबाइल के लिए पैसा मांगा था, बट आपने मांगा किस लिए था? मोबाइल के लिए। आपको मोबाइल मिल गया, दैट मींस इक्विवेलेंट टू दैट मोबाइल, यू गॉट द मनी, सो पे ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। या सो आपने वही करना है कि जब आपको वो पैसा मिल जाए तो आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है, एंड कीप डूइंग दिस प्रैक्टिस एज लॉन्ग एज यू वांट। आप पूरी जिंदगी भी कर सकते हैं। एक चेक लिखा, वो फुलफिल हो गया, दूसरा लिखें, जो जो चीज चाहिए उसके लिए चेक लिखते चले जाएं,
और यूनिवर्स से बोलते जाएं भाई दे दे मुझे पैसा, मुझे ये चीज खरीदनी। या लेट्स डू द प्रैक्टिस टुडे। Magic practice number 17. The magic check. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, fill in your magic check with the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Third, hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Fourth, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions, take the check in your hands. Picture yourself using the money for what you want and feel as grateful as though you were really doing it. Fifth, at the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you received the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want. And repeat step 2 to 4. 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू सो मच Thank रंजन जी फॉर रीडिंग इट। ओके, तो आज की प्रैक्टिस क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ कोर्स यू नो। तो आज आपने एक मैजिक चेक लेना है जो इस बुक में भी दिया हुआ है और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ना कोई अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ना कोई शेयर कर देगा। तो आप उसको अपने नाम के साथ भर लीजिए। अपना नाम लिखना है, अमाउंट लिखना है एंड आज की डेट डालनी है। और किस चीज के लिए लिखना है, आपको वो उस चीज के बारे में सोचना है कि आपने क्या खरीदना है उससे। एंड देन आप पूरे दिन में आपने करना क्या, आपने विजुअलाइज करना है एज इफ यू ऑलरेडी रिसीव्ड इट। आपने वो चीज खरीद ली है, आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, और दिन में 2 बार एटलीस्ट आपने उस चेक को देखते हुए वही एक्सपीरियंस करना है, ग्रेटिट्यूड, कि आपको वो चीज मिल गई, आपने वो चीज खरीद ली है आपको ये पैसा मिलने से। या और उसके बाद आपने इस चेक को कहीं पे भी रखना है जहां पर भी आपके सामने रहे, ताकि आप दिन में इसको 2-3 बार देखें और इसको उस चीज को एक्सपीरियंस करते हुए आप ग्रेटिट्यूड दें, एज इफ यू हैव already got the money and you already bought that thing, right? So this is the practice for today. और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो you can ask me right now and then we will conclude the session, because आज भी थोड़ा लंबा खिंच गया सेशन, because ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। And I have a request to make. अगर मैंने आपको बडीज बनाया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली ये है कि आपका बडी सेशन में आए। आपके जितने लोगों के बडीज बन गए हैं उनमें से कितने लोग हैं जिनके बडी नहीं आए हैं? जस्ट राइट इसका बडी नहीं आया, राइट इट इन द चैट बॉक्स। वो सुशील नहीं आया है। हाँ। उसके किसी फ्रेंड की एंजियोग्राफी वगैरह होनी है, तो वो एंजियोग्राफी सुबह कितने बजे होनी है? ये मुझे नहीं पता, वो कि सुबह ही हाँ, चला सो गया। यू नीड टू नो। तो अगर आप उनके बडी हैं तो आप उनकी कहानियों को और उनके रीजंस को नहीं खरीदेंगे। अगर वो कह रहे हैं एंजियोग्राफी है तो एंजियोग्राफी सुबह 6 बजे नहीं हो रही है, एंजियोग्राफी दिन में होती है या शाम में होगी। सो दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज फॉर नॉट बीइंग इन द सेशन। एंड आपको पता है कि वो सेशन में नहीं आ रहे हैं तो वो क्या मिस कर रहे हैं और वो अपने सपनों को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंश्योर करें सेशन में आने से पहले कि इज ही रेडी टू बी इन द सेशन। नहीं उठाए तो उसको उठाएंगे आप। बटी का मतलब यही है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। अगर वो नहीं है सेशन में तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका बडी सेशन में नहीं है। ओके। एंड आपको उसकी जिंदगी के बारे में सब पता होना चाहिए, और जहां पर भी वो कोई बहाना बना रहा हो या रीजन दे रहा हो तो आपने उसको होल्ड टू अकाउंट करना है। अगर तुझे सपने पूरे करने हैं, अगर तू मनी के एरिया में स्ट्रगल कर रहा है तो हाउ कैन यू मिस मनी चैप्टर?
Okay. And he's dealing with money right now, and he's got so much worries and negative thoughts about money. और उसके लिए इस चैप्टर में होना कितना जरूरी था. And he's not there because he's resisting it. हम जिंदगी में बहुत सारी चीजों को रेजिस्ट करते हैं. इतने सारे लोग जो आज सेशन में नहीं है तो कुछ ना कुछ कारण है, और वो सिर्फ कारण है. अगर उनकी लाइफ, अगर उनकी जिंदगी, उनके सपने किसी चीज से बहुत इंपॉर्टेंट होते तो वो आज सेशन में होते. उनके लिए दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. उनकी लाइफ डिपेंड नहीं कर रही है इसके ऊपर. उनको ये नहीं लग रहा कि उनको कुछ यहाँ पे ऐसा मिलने वाला कि उनकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. उनके लिए ये एक ऐसा सेशन है कि हाँ ठीक है यार, रजिस्टर किया हुआ कर लेंगे जब टाइम मिल जाएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, और फिर रिकॉर्डिंग भी पूरा दिन नहीं सुनेंगे. सो इसीलिए बडीज बनाए हैं कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका बडी इस जो गेम हमने शुरू किया हुआ है, ये जो हमने सेशन शुरू किया हुआ है, इसमें फुली पार्टिसिपेट करे ताकि उसकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो. और अगर अगले ने बोल दिया कि मेरा तो ये कारण है, तो यू विल नॉट टेक इट. यू विल से ओके व्हाटएवर इट इज. क्या कर सकते हो कि इसके बावजूद भी आप सेशन में आओ. थैंक्स टू मी कि मैंने आपको ये बोला तो और सबको भी ये मैसेज पास ऑन हो गया. Yeah, thank you so much, Ranjan, for sharing that, because that is what the body is. बडी का कारण बनाने का कारण यही है कि I want everybody to be actively participating. क्योंकि मेरी इंटेंशन है कि जितने लोग भी इस सेशन में हैं, वो अपने सपनों के जितने करीब पहुंच सकते हैं पहुंचे. या और वो तभी पहुंचेंगे जब वो प्रैक्टिस करेंगे, सेशन में आएंगे. या प्लेटर में नहीं आ रहा है कुछ. हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है. बिना मेहनत के कुछ नहीं होता. एग्जैक्टली. So I am actually asking each one of you to take on this ownership, take on this responsibility कि आपका बडी हर सेशन में होना चाहिए आपके साथ. और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सुबह उनको सुबह फोन कर रहे हैं कि आप सेशन में कितने बजे पहुंच रहे हो, लेट्स लॉग इन राइट नाउ. ओके. और अगर वो कोई कहानी सुना रहा है तो आपने उसको वहीं पे काट देना है. डोंट गिव मी ऑल दिस नॉनसेंस. यू आर कमिंग मीन्स यू आर कमिंग. अनलेस बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी है. क्योंकि अपनी जिंदगी में जो हमें चाहिए उससे तो बढ़ के कुछ होना ही नहीं चाहिए. अगर वो आपके लिए इतना अर्जेंट है या इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपकी तो जिंदगी का मकसद यही होना चाहिए कि मुझे पहले ये चीज मिल जानी चाहिए जिसके लिए मैं इतने स्ट्रगल पूरी जिंदगी करता आ रहा हूँ. और उसे तो अपनी लड़की को स्टैनफोर्ड भेजना है. That's what I'm saying. आप कहते हो कि मुझे ये सब करना है या मुझे ये सब चाहिए, पर जब मेहनत करने की बारी आती है तो आप नहीं करना चाहते हो. आपको लगता है कोई जादू आए और आपके झोली में डाल के चला जाए. वो जादू क्रिएट करने के लिए ग्रैटिट्यूड तो देना पड़ेगा ना, और वो कैसे करना वो तो सीखना पड़ेगा ना. या जादू तो होगा, पर जादू को एक्टिवेट तो करोगे. सीखो तो. जादूगरी सीखोगे तो सही ना कि जादूगरी करनी कैसे है. If I am so intentional about each one of you, why can't you be committed about your life? Yeah. I hope I'm communicating the message to everybody. Please say yes or no. Are you taking this on that your buddy will be in the session tomorrow? Please write it in the chat box. Yes or no. I want to see everybody's response. Yes. Yeah, Ranjan ji, thank you. Thank you, Prakhar. Thank you, Ji. Thank you. Thank you, Deepak. I want everybody to respond, please. I want everybody to take on this responsibility. I know you're not used to it. Thank you, Anji. I know we are not wired like that. हम लोग ऐसे दिमाग हमारा है ही नहीं कि हम ऐसे काम करते हैं, पर आज से सीखते हैं. और ये आपको जिंदगी में बहुत फायदा देने वाला है कि जब आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जब आप किसी के लिए अकाउंटेबल होते हो, आप देखोगे आपकी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होगी. आपकी फैमिली में, आपके ऑफिस में, you will be a totally different person. Thank you, Atul. I've not heard from Ranjan, this thing, Meenu.
नो नो, यू आर राइट, ये मैसेज कन्वे हो गया सबको, और जो भी रिकॉर्डिंग देखेगा उसको भी ये डांट जो है वो याद रहेगी। हाँ, और I want each one of you to write in the WhatsApp group, what did you get today? या And मैं what are तो you अभी फोन करूंगी। what are you taking it on? आप उसमें लिखें सब जने कि आज के सेशन के बाद बड़ी स्ट्रक्चर में आप क्या अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो और आप क्या क्या करने वाले हो उसके बारे में, so that everybody gets present to it. या Yeah, मैं तो अभी फोन करूंगी और फिर बोलूंगी। yeah. So आपको ये सबको करना है अपने बड़ी के लिए। या Yeah. So थैंक thank you यू। everybody, and let's do the gratitude prayer. और अगर किसी को चेक चाहिए तो आप ग्रुप में लिख दीजिएगा, कोई ना कोई शेयर कर देगा, अदरवाइज आप यू कैन टेक अ फोटोकॉपी एंड ऑल। Thank you, Anji. Yeah, please fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. So thank you everybody and have a wonderful day. और आज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने बडीज को कनेक्ट कर लीजिएगा। एक बार दिन में अपने बडी से बात जरूर करा करो, एवरी डे, एवरी डे, पता तो चले उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है, because people don't open up here. That is why this structure I'm making, ताकि उनकी जिंदगी में जहां पर भी वो अटके हैं, कहीं ना कहीं कोई तो हो जिससे वो बात कर पाए, कोई ना कोई हो जो उनको थोड़ा गाइड कर पाए या उनका सपोर्ट बन पाए। एंड wherever you get stuck, मैं बैठी हूं ना यार, कहीं पे भी आपको लगता है कि आप नहीं डील कर पा रहे हो, tell me, I am there. I am always there for all of you. This is my commitment for you. I want you to be committed about to your life also ना। खाली मेरी कमिटमेंट से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप कमिटेड नहीं होंगे। So I want each one of you to be committed for your life as well as for your buddy's life. Yeah. Okay. Thank you everybody, and we'll see you tomorrow at 6:20. And ensure that your buddy is there in the session tomorrow and logs in by 6:20. Yeah. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, everyone. Bye. Bye.